Okay. All right. Welcome back, everyone, for our second lecture. और दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। All of you received copy of the book God's Word, The Miracle Seed. और आप सभी को परमेश्वर का वचन चमत्कारी बीज की पुस्तक मिल गई है। Yeah. So everything we are learning is in that book. और देखिए जो कुछ अभी तक हम सीख रहे हैं वो सब इस पुस्तक के अंदर में उपलब्ध है। Right. So you can follow with me in that book, or you could read it in the evening when you have some time. और जब पढ़ाते हैं तब आप इस किताब से हमारे साथ साथ चल सकते हैं, या तो फिर संध्या के समय आपके पास जब समय है तो आप इस किताब से अध्ययन जरूर करिए। Right. Online students, we will upload the PDF in English and Hindi for you. और ऑनलाइन छात्रों के लिए अंग्रेजी और हिंदी में PDF हम आप लोग तक पहुंचा देंगे। The same book, God's Word, The Miracle Seed. और यही किताब जो परमेश्वर का वचन चमत्कारी बीज है। So you can have the PDF version. और आप PDF से अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। So we have been talking about the parable of the sower. और हम बोने वाले के दृष्टांत के बारे में बात कर रहे थे। And we're talking about the very first insight Jesus gave to us. और देखिए सबसे पहला नजरिया जो यीशु ने हमको दिया उसके बारे में हम बात कर रहे थे। That the seed is the word of God. और बीज परमेश्वर का वचन है। Right? So when we are reading the scriptures, और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, keep this in your mind. अपने मन में इस बात को रखिएगा। You are taking seed into your heart. और आप बीज को अपने हृदय के अंदर में ले रहे हैं। The seed may look lifeless. और हो सकता है कि बीज ऐसा दिखाई दे कि उसमें अंदर जीवन नहीं है। But in that seed there is life and power to produce. और लेकिन उस बीज के अंदर में जीवन भी है, सामर्थ्य भी है उत्पन्न करने के लिए। Amen. आमीन। And the second thing we said is every seed will produce after its own kind. और दूसरी बात हमने कही थी कि हर एक बीज अपने ही समान उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है। So this is a very important principle. और ये बहुत महत्वपूर्ण एक नियम है। That for example, if we need healing in our own bodies, और उदाहरण के लिए यदि हमारी खुद के देह के अंदर में चंगाई की आवश्यकता है, what seed are you going to sow? और कौन सा बीज आप अपने अंदर बोएंगे? The scriptures, the word of God on healing. और चंगाई के ऊपर में जो वचन है आप उन्हें अपने जीवन के अंदर में बोएंगे। So you go to the scriptures. और आप वचन में जाते हैं। Those scriptures that teach us on God being our healer. और जो वचन हमें इस बात की शिक्षा देते हैं कि हमारा परमेश्वर जो हमारा चंगा करने वाला है। And you sow that seed into your heart. और उस वचन को, उस बीज को आप अपने हृदय के अंदर में बोते हैं। So similarly, whatever you want to see God work in your life. और देखिए बिल्कुल वैसा ही जो कुछ आप अपने जीवन के अंदर में देखना चाहते हैं, you take that seed and put it into your heart. और आप उस बीज को ले और अपने दिल के अंदर में उसे बोले। And the seed of God's word और परमेश्वर के वचन का बीज will produce in our lives. और वो हमारे जीवन के अंदर में उत्पन्न करेगा। You understand? आप समझ रहे हैं? Yeah. We'll explain this even further as we go along. Now, the next thing we notice, और देखिए अगली बात जो हमने यहाँ देखी, or the question we want to ask, और या तो कहें कि जो प्रश्न हम पूछना चाहेंगे, where must the seed be sown? और उस बीज को कहाँ बोना चाहिए? In our hearts. हमारे हृदय में। Right? So if you go to Matthew chapter 13, मत्ती उसका 13 अध्याय, Matthew chapter 13, मत्ती 13 अध्याय, sorry, I'll make you the exact verse. Verse 19. और 19 वचन,
When anyone hears the word of kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. This is what was sown along the path. Yeah. So here Jesus telling us where that seed is sown. और देखिए यहाँ यीशु मसीह बतला रहे हैं कि वचन बीज कहाँ बोया जाता है Where was it sown? और कहाँ बोया गया है, In our heart. हमारे हृदय में। Now, what we understand in this parable is that just like there are different kinds of soil, there are the conditions of the heart, there are different conditions of the heart. और देखिए इस दृष्टांत के अंदर में इस बात को भी हम समझते हैं कि जिस प्रकार इस दृष्टांत में अलग अलग भूमियों की परिस्थिति को बताया गया है, वैसे ही कई हृदयों की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। So, what were the 4 kinds of soil that Jesus mentioned in this parable? और इस दृष्टांत में वो 4 किस प्रकार की भूमियों का वर्णन यीशु मसीह कर रहे हैं। First one was the और सबसे पहली भूमि कौन सी बता रहा है? wayside. Second, और दूसरा, पहला रास्ते के किनारे का, दूसरा stony grounds. और वो पथरीली भूमि, Third, तीसरी the ground which had a lot of thorns. और एक ऐसी भूमि जहां पर बहुत सारी झाड़ियां उगी हुई है, And fourth, और चौथी भूमि good ground. और अच्छी भूमि। Right? So there's nothing wrong with the seed. और देखिए बीज के साथ में कोई गलत नहीं है, समस्या नहीं है। The seed is good. और बीज अच्छा है। The seed of God's word will always produce. और परमेश्वर के वचन का बीज हमेशा उत्पन्न करता है। But whether or not that seed will produce depends on the ground. और लेकिन जो बीज उत्पन्न करेगा या नहीं करेगा वो भूमि के ऊपर में निर्भर करता है, And some other things. और उसके साथ में कुछ और चीजों के ऊपर। All of us, और हम सभी, we all have the same Bible. और हम सभी के पास में एक ही बाइबल है, Same Bible. और एक सा बाइबल है। Every promise that God has given, He has given to all of us. और हर एक वायदा जो परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने हम सब को वो किया है। And in every promise, there is power and life for it to be fulfilled. और देखिए हर एक वायदे के अंदर में सामर्थ है और उसे पूरा करने का क्षमता भी है। But मगर whether or not God's word will produce in us, और कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में उत्पन्न करेगा या नहीं करेगा, it depends on the condition of our heart और वो हमारे हृदय की स्थिति के ऊपर में निर्भर है, and how we protect that seed. और उसके साथ हम किस प्रकार उस बीज को बचा कर रखते हैं। Amen. आमीन। So put your right hand up और अपना दाहिना हाथ उठाएं and say this with me. और मेरे पीछे पीछे बोलिएगा We pray this prayer. और इस प्रार्थना को करिएगा। Dear Father, प्रिय परमेश्वर, I want my heart और मैं चाहता हूं मेरा हृदय to be good ground. एक अच्छी भूमि होने पाए। I want to protect and nurture the seed. मैं बीज को सुरक्षित रखना चाहता हूं और बढ़ाना चाहता हूं। And I want your words और मैं आपके वचन को चाहता हूं to bring 100-fold fruit. कि 100 गुना फल लेकर आए। Amen. आमीन। So we are going to learn और हम सीखेंगे how to make sure our heart is good ground और हम इस बात को कैसे पक्का कर सकते हैं कि हमारा हृदय एक अच्छी भूमि बना रहे, and how we can protect and nurture the word of God. और किस प्रकार हम परमेश्वर के वचन को सुरक्षित रख सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं। Sometimes we might see 30-fold fruit. Okay, it's not bad. कई बार हम 30 गुना फल देखेंगे, अच्छा है, बुरा नहीं है। We continue to work on the soil of our heart. और हम अपने हृदय की जो मट्टी है उस पर निरंतर काम करते रहेंगे, And then we can see 60-fold. और उसके बाद हम 60 गुना फल देख सकते हैं। Good.
अच्छा है। Continue to work on our heart. और निरंतर अपने हृदय पर काम करते रहें We can see 100-fold fruit. और हम 100 गुना फल वहां पर देखने पाएंगे। Amen. आमीन। The first soil और सबसे पहली जो भूमि है, where the seed was sown, what happened? और देखिए हमने देखा कि क्या हुआ। Jesus said birds of the air came and took the seed. और देखिए यीशु मसीह ने वचन में बताया ना, आकाश के पक्षी आए और उसने बीज को चुग लिया। What was he referring to? और वो किस बात को दर्शा रहा है? Matthew 13. मत्ती 13। What did we just read? और अभी हमने क्या पढ़ा मत्ती 13 में? What happens? और क्या हुआ 19 में? 13 के 19 में क्या हुआ? It says Matthew 13 verse 19. और 19 में लिखा हुआ है मत्ती 13 के, The wicked one comes and snatches away what was sown. और देखिए वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है जो बीज बोया गया। Now think about that. और इसके बारे में जरा सोचिएगा। Satan और शैतान wants to make sure we don't receive the word. और वो इस बात को पक्का करता है कि वो वचन जो बोया गया उसे वो चुरा ले, Because he knows क्योंकि वो जानता है there is power in the word. और परमेश्वर के वचन के अंदर में सामर्थ्य है। He knows और वो जानता है that if we receive the word, God's going to work in our life. और यदि हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने लग जाएगा। So think about this. और सोचिए इसके बारे में। One of the ways by which the devil can keep believers defeated or weak is by stealing or taking away the word. और देखिए शैतान एक तरीका है जिसके द्वारा चाहता है, प्रयास करता है कि विश्वासी लोग हारा हुआ, निराशा से भरा जीवन जिए, और वो ये है कि जो बीज उनके हृदय में बोया गया है उसको चुराने के द्वारा। Are you understanding? आप समझ रहे हैं? The devil wants to take it away. और शैतान उस वचन को चुराना चाहता है। How does he do it? और वो कैसे करता है? He doesn't just simply come and take it away. और वो ऐसे ही आकर आपके हृदय से वचन को चुराता नहीं है। When what is the reason? How does the devil take away the word? Look at verse 19 carefully. और देखिएगा किस प्रकार शैतान आके वचन को चुराता है। 19वें पद में लिखा हुआ है, Matthew 13:19. और मत्ती 13 उसके 19 में, What does it say? और क्या लिखा है? When they do not understand the word, और जब वे वचन को समझते नहीं है, then he can take it away. और तब वो चुरा सकता है। So it's so important और इसीलिए महत्वपूर्ण है that we understand the word. कि हम परमेश्वर के वचन को समझें। So in order to keep us from understanding the word, और देखिए परमेश्वर के वचन को समझने से हमें परे रखने के लिए the devil will put lies. और शैतान हमारे मन में झूठ डालेगा। No, God didn't say it like this. He said like that. और नहीं, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा, परमेश्वर ने वैसा कहा था। Sometimes we get confused. और कई बार हम जो है गड़बड़ी में पड़ जाते हैं। Is it that, or did it mean this, or does it mean that? और क्या मतलब है इसका? मतलब ये है या उसका मतलब वो है? We don't understand. और हम समझते नहीं हैं। He tells us it's not like that. और वो कहता है ये ऐसा नहीं है ये। And so when we don't understand the truth, और जब हम सत्य को नहीं समझते हैं, it gives the devil an opportunity to take that away. और तब शैतान को वो एक मौका प्रदान करता है कि जो बोया गया बीज है, वचन है, वो हमसे छीन ले जाए। And the seed of the word और परमेश्वर के वचन का जो बीज है will not produce in our lives. और वो हमारे जीवन के अंदर में उत्पन्न नहीं कर पाता। So it's so important for us और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। to understand kingdom truth. और राज्य के सत्य को हम समझें। This is how God works. इसी रीति से परमेश्वर कार्य करता है। This is how the Holy Spirit works. और इसी प्रकार पवित्र आत्मा कार्य करता है। Because when you don't understand, और यदि आप नहीं समझे, the devil takes it
और शैतान उसे ले जाता है and the word doesn't produce. और वचन आप में उत्पन्न नहीं कर पाएगा। We can hear the word, और हम सुन सकते हैं, but when we don't understand, और लेकिन जब हम समझते नहीं हैं he takes it away. और शैतान उसे छीन ले जाता है। So this is where even when we are ministering to other people, और देखिए ये बिल्कुल वैसा ही है, उसके साथ ये भी है जब हम दूसरों के प्रति सेवकाई को करते हैं we need to help them understand the और word. हमें मदद करना है कि जो सुनने वाले हैं वो उस बात को समझ सकें। There's no point in speaking in some very high language where they don't understand. What's the point? और देखिए इसमें कोई मायने नहीं रखता है कि आप बहुत ऊंची भाषा में बात कर रहे हैं और सुनने वाले को एक रत्ती समझ में नहीं आ रहा है, फायदा ही क्या आपके बोलने का। They may say, oh, very nice sermon, pastor. और वो कहेंगे वाह बहुत अच्छा संदेश प्रचार किया पास्टर जी आपने, So nice, I didn't understand और anything. इतना अच्छा था कि एक शब्द समझ में नहीं आया। What's the point? मतलब क्या है? That message will have no effect in their lives. और वो संदेश का उनके जीवन के अंदर में कोई प्रभाव ही नहीं हो पाएगा। Because the first thing, in order to receive the seed of the word, is we must understand it. और देखिए सबसे पहली बात यह है कि यदि उस वचन को हमारे अंदर हृदय में स्वीकार करना है तो हमें परमेश्वर के वचन को समझना जरूरी है। Amen? आमीन। So when we are ministering the word to other people, और जब हम दूसरों के मध्य में वचन की सेवकाई को करते हैं try to help them understand. और प्रयास करें कि वो वचन को समझ सकें, And for ourselves, और अपने लिए भी, we also must understand. और हमें भी परमेश्वर के वचन को समझने की आवश्यकता है। This is what it means. और इसका मतलब ये है। So that's the seed that was sown on the wayside. और ये वो बीज है जो मार्ग के किनारे में बोया गया। The second one, और दूसरा बीज stony ground, और जो पथरीली भूमि है where there were a lot of stones. और वहां पर बहुत सारे पत्थर हैं The seed was sown, और बीज बोया गया it took root. और वो जड़ पकड़ रहा है, जड़ जा रही है उसकी। But then the sun came out, लेकिन जब सूरज निकला and because the ground was stony, the roots didn't go too deep. और क्योंकि जमीन पथरीली है और जो जड़ है वो बहुत गहराई में नहीं गई, So the plants that began to grow were dried out and they failed to produce. और जो पौधे वहां पर बड़े हुए थे वो सूखने लगे और सूख कर वो फल उत्पन्न नहीं कर पाए, वे मर गए। What is Jesus referring to? और यीशु मसीह यहाँ पर किस बात को दर्शा रहे हैं? He says, and we can look at this in here in Matthew 13. We are in Matthew 13, और मत्ती 13 में हम इस बात को देख सकते हैं, verses 20 and 21. और 20 और 21 वचन में। He says, the stony ground, और वो कह रहा है पथरीली भूमि पर they hear the word, they receive it with joy, they're very excited. और वो उस वचन को सुनते हैं, आनंद के साथ में ग्रहण करते हैं, बड़े उत्साहित होते हैं। But then लेकिन उसके बाद two things happen. और दो बातें होती हैं, There is persecution and there is difficulty. और वहां पर उपद्रव होता है और वहां मुश्किलें खड़ी होती हैं। For the word's sake, और वचन के कारण, because of the word. और वचन के कारण। Now that's interesting. और ये बड़ी रुचिपूर्ण बात है। That what Jesus is telling us is that when we receive the word of God, और देखिए यीशु मसीह हमसे ये कह रहे हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, we will face situations in life and we may even face opposition from people. और देखिए हम अपने जीवन के अंदर में जरूर परिस्थितियों का सामना भी करेंगे, उसके साथ में कई बार हमारे विरुद्ध लोगों को भी हम देखेंगे, That is connected to that word. और जो उस वचन के साथ में जुड़ा हुआ होगा। Example. और उदाहरण के लिए, Maybe you hear the word of God on divine healing. और आप दैवीय चंगाई के ऊपर में परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, And that's the time somebody will come and say, no, God has stopped healing people 2000 years ago. और वही समय होता है जब कोई आकर कहता है अरे यीशु मसीह ने तो 2000 साल पहले चंगा करना बंद कर दिया है। When the last apostle died, healing stopped. और जब आखिरी प्रेरित मर गया तब से चंगाइयां बंद हो गई।
feel confused. और आप बहुत गड़बड़ी में महसूस करते हैं अपने आप को। I just heard the word of God on healing. और मैंने तो अभी चंगाई के ऊपर में परमेश्वर के वचन को सुना है। Now another preacher is saying, when the last apostle died, healing stopped. और लेकिन अभी एक और प्रचारक कह रहा आखिरी प्रेरित जब मरा था तब से चंगाइयां बंद हो गई हैं। Confused. और दिमाग में गड़बड़ी हो जाती है। And when you say, no, I believe in healing, और आप कहते हैं नहीं मैं चंगाई पर विश्वास करता हूं। because Bible says, you can give so many reasons. Jesus is the same yesterday, today, and forever. He's the same healer. और देखिए आप कई सारे कारणों को दे सकते हैं, बाइबल से भी कह सकते हैं कि यीशु मसीह जो है कल आज युगान युग एक सा है, वो वही चंगा करने वाला आज भी वैसा ही परमेश्वर है। Maybe the persecution is, no, you cannot be in this church. If you believe in healing, you cannot stay here. Please go. और हो सकता है कि कलीसिया के अंदर में आपके ऊपर सताव हो जाए, तुम चंगाई पे विश्वास करते हो, निकल जाओ यहाँ से, तुम चर्च में नहीं रह सकते। Whatever, the persecution can come in different ways. और देखिए जो सताव है वो अलग अलग तरीकों से आ सकता है। I remember when I was, in the early days as a teenager, और देखिए मुझे याद है किशोर अवस्था में मेरी सेवका मसीहत की आरंभ में, I was just maybe 13 or 14. और मैं 13 या 14 साल का रहूंगा। I had just, those days, I just been baptized with the Holy Spirit, praying in tongues. और उन दिनों में मैंने पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाया ही था, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा And I था। was learning about God wants to heal, lay hands. Jesus said, lay hands on the sick and they'll recover. और मैं पढ़ी सीख ही रहा था कि परमेश्वर चंगा करना चाहता है, हाथ रखो बीमार को चंगा करो। So I was so excited. और मैं बहुत उत्साहित था। In my school, I would, wherever anybody sick, would lay hands and pray. और मेरे स्कूल के अंदर में जब कभी कोई बीमार रखता था उसी पर हाथ रखकर प्रार्थना करता था। Because I was so excited. It's in the Bible. और क्योंकि मैं बहुत उत्साहित था, क्योंकि बाइबल है ये। But I remember लेकिन मुझे याद है there was a pastor in our church. और हमारी कलीसिया में एक पासवान थे। And, at that time, और उस समय पर he did not believe in these things. और वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे। He had come from the seminary, he had been trained. और वो सेमिनरी से आए थे, प्रशिक्षित होकर आए थे। I remember he called me. और मुझे याद है उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया He sat with me. और वो मेरे साथ बैठे। And he said, Ashish, I heard you're praying in tongues. और उन्होंने कहा आशीष मुझे सुना है कि तुम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो। Yeah, I am praying. मैंने कहा हाँ मैं कर रहा हूँ। I heard you're praying for the sick. और मैंने ये भी सुना है तुम बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हो। Yes. और हाँ। So no, you must not do that. और वो कहते हैं कि नहीं तुम्हें नहीं करना चाहिए। Now I'm a 13, 14-year-old boy. और देखिए मैं तो केवल 13-14 साल का लड़का था। I've not even read my full Bible. और मैंने अभी तक अपनी पूरी बाइबल भी नहीं पढ़ी थी। He has come from the seminary. और वो तो सेमिनरी से आए थे। He was the assistant pastor in the church. और वो कलीसिया में सहयोगी पासवान थे। I have nothing to say. और मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं था उनको। Only thing I know, और केवल एक बात मैं जानता था, it is happening. और ये हो रहा है। I'm praying in tongues. और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ। All of others I'm praying for, they're also praying in tongues. और जिन सभी पे हाथ रखकर प्रार्थना कर रहा हूँ वो भी अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। Praying for the sick, और बीमार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ they're getting healed. और वो चंगे हो रहे हैं। So I don't know how to argue, और मुझे नहीं मालूम इनके साथ कैसे वाद विवाद करूं। but the Bible is working. और लेकिन बाइबल काम कर रही है। So I didn't say anything. और मैंने कुछ नहीं कहा उनसे। But I just kept doing it. और लेकिन मैं चुपचाप करता रहा वो। Because his argument is not going to stop. क्योंकि ये वाद विवाद उसको रोकेगा नहीं। Amen? आमीन। Now, this is real. और ये सच्ची बात है। That happened maybe, 40 years ago. और करीब 40 साल पहले ये हुआ होगा। Some years ago, I met the same pastor. और कुछ साल पहले मैं उसी पासवान से मेरी फिर से मुलाकात हुई। After almost 40 years, he comes, he's telling me, और 40 साल के बाद में आकर वो मुझे कह रहे हैं, God worked. I also pray in tongues. और वो कहता है परमेश्वर काम कर रहा है, अब मैं भी अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। His whole theology, everything, his whole life has changed. और देखिए उसका जो शिक्षा है, पूरा जीवन जो है वो भी बदल गया अब। Amen? आमीन। The point is this, that sometimes when we receive the word, और बिंदु यहाँ पर यह है कि जब कई बार हम परमेश्वर के वचन को प्राप्त करते हैं, Jesus said, और यीशु ने कहा there will be
trouble, और there will वहां be पर persecution और सताव होगा, समस्या होगी, because of that word. और उस वचन के कारण। So if you face difficulty, say, I just heard the word of God on something and I'm just facing difficulty. और देखिए, जैसे आपने अभी किसी वचन को प्राप्त किया और उसके वचन के आधार पर ही आप मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, Then remember the stony ground. और तब आप उस पथरीली भूमि को याद रखिएगा। What happened to stony ground? और उस पथरीली भूमि पर क्या हुआ? There was no root. और वहां पर जड़ नहीं था। And so the plant that was growing withered away. और जो पौधे वहां बढ़ रहे थे वो सूख गए। So we must not be like the stony ground. और तब हमें पथरीली भूमि के समान नहीं होना है। When there is that trouble and tribulation and persecution for the sake of the word, that's the time you say, God, let your word get deeper in my heart. और देखिए, जब वचन के कारण उपद्रव हो, सताव हो, समस्याएं हो, वो समय होता है जब आपको कहने की आवश्यकता है, परमेश्वर मेरे हृदय में और गहराई से आप उतर जाएं। Let the word of God take deep root in me. और परमेश्वर के वचन मेरे हृदय में गहराई से जड़ पकड़ने पाए। I'm not going to let the stones और मैं इन पत्थरों को अनुमति नहीं दूंगा and the difficulties और मुश्किलों को destroy the fruit that is going to come. और उस फल को जो आने वाला है उनको मैं नाश करने ने अनुमति नहीं दूंगा। You understand it? आप समझ रहे हैं? Yes? No? समझ रहे हैं? The third thing, और तीसरी बात, Jesus said, और यीशु ने कहा, what's the seed that was sown on the ground where there were a lot of thorns? और देखिए वो बीज जिस भूमि पे बोया गया जिसमें बहुत सारी झाड़ियां लगी हुई थी, That means there were a lot of other things going on around the seed. और इसका मतलब है कि उस बीज के आसपास में और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। Remember, there's nothing wrong with the seed. The seed is good seed. और याद रखिएगा, बीज के साथ में कुछ गलत नहीं है, बीज अच्छा बीज ही है। It is the word of God. और वो परमेश्वर का वचन है। It is full of life and power. और उसके अंदर में जीवन है और सामर्थ्य से परिपूर्ण है। It is sown in our hearts. और वो हमारे हृदय के अंदर में बोया भी गया है। But now Jesus is saying there are thorns. और लेकिन अब यीशु मसीह कह रहा है कि वहां पर झाड़ियां हैं। Now, who could tell me what do the thorns represent? और कौन मुझे बताएगा कि झाड़ियां किस बात को दर्शाती हैं? Cares of the world, संसार की चिंताएं, deceitfulness of riches. और धन के धोखा। And go to Mark chapter 4, he gives one more thing there. और मरकुस 4 में जाइए, वहां पर एक और बात बता रहा है। Mark 4 and verse 19. और मरकुस 4 उसका 19। 3 things. और 3 बातें बोल रहा है। But the care of the world and the deceitfulness of riches and the desire for other things enter in and choke the word, and it proves unfruitfulness. Yeah. So 3 things he mentions here. और 3 बातों का जिक्र यहाँ पर कर रहा है मरकुस। The cares of this world. और संसार की चिंता। Now, we all have responsibilities here on earth. और देखिए, पृथ्वी पर हम सब की कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हैं। We have to take care of whatever we are responsible for. और जिस किसी बात के लिए हमें जिम्मेदार ठहराया गया है, हमें उसकी देखभाल करना है। But we have to be careful. लेकिन हमें उसके साथ सावधान होने की जरूरत है। Because Jesus said, the cares of this world could become like thorns. और क्योंकि यीशु मसीह कह रहे हैं कि संसार की चिंताएं झाड़ियों के समान हो सकती हैं। And it prevents the word of God from producing in our lives. और वो हमारे जीवन के अंदर में परमेश्वर के वचन को फल लाने से रोक सकती है। So
Of course, we have to fulfill our responsibilities, और जरूर हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की आवश्यकता है, but don't let the responsibilities of the world keep you from the word of God. और लेकिन संसार की जिम्मेदारियां आपको परमेश्वर के वचन से दूर ना करने पाए। Now, most of you are, almost all of you are very young. You go back home, maybe your parents are taking care of you, all of that. But when you grow up, you will have to take care of your families. You will have a lot of responsibility. और देखिए, आप लोग तो अधिकतम सभी लोग बड़े जवान हैं, आप लोग जब अपने घर जाएंगे, अधिकतम आपके माता पिता आप लोगों की चिंता करते हैं, आपकी देखभाल करते हैं, लेकिन आप वयस्क होंगे, बड़े होंगे, शादी ब्याह करेंगे, परिवार बनाएंगे, फिर आपकी उनकी जिम्मेदारियों को आपको निभाना है। Remember, याद रखिएगा। of course, you fulfill your responsibility, और जरूर आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करिए, but don't let your responsibilities keep you away from the word of. लेकिन आपकी जिम्मेदारियां आपको परमेश्वर के वचन से दूर ना रखने पाए। You still take time to read the Bible. और आप फिर भी समय निकालते हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, You feed your spirit with the word of God और अपनी आत्मा को परमेश्वर के वचन से खिलाने के लिए, and protect the word that's in your heart. और जो वचन आपके हृदय के अंदर में है उसको सुरक्षित रखने के लिए। Don't let responsibilities become thorns. और आप उन जिम्मेदारियों को अपने जीवन के अंदर में झाड़ियां बनने नहीं देना है, Keep it out. और उन्हें दूर रखिएगा। Second, he said, the deceitfulness of riches. और दूसरा वो कह रहा है धन का धोखा। Now, we all need money हम सबको पैसा चाहिए, and we should work. हमें काम करना चाहिए, So we earn. और ताकि कमाएं, It's all there. और वो है, सब है। But don't make money the most important thing. और लेकिन आप पैसे को सबसे महत्वपूर्ण ना बना दें। Don't let our efforts to make money keep us from the word of God. और देखिए, आप अपने आप को ऐसा ना बनाएं कि आप जो पैसा कमाने की मेहनत कर रहे हैं वो आपको परमेश्वर के वचन से दूर रख दे। Of course, you go to your work, do your job. और जरूर आप अपने काम पर जाइए, नौकरी करिए, You have to earn money to take care of things. और आप पैसा कमाइए ताकि आप अपनी चीजों की देखभाल कर सके। But don't get so caught up in it in order to make money, more money, that it keeps you from the word of God. और अपने आप को उससे बचा कर रखिए कि आप ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वो आपको परमेश्वर के वचन से दूर लेकर चला जाए। Then what has happened? और फिर क्या होगा? Money has blinded your eyes, deceived you, and that becomes a thorn. और वो पैसा आपकी आंखों को अंधा कर देगा, आपको झुटला धोखा दे देगा, और वो आपके जीवन में एक झाड़ी बन जाएगा। And Mark 4:19 says, and the desire for other things. और देखिए, मरकुस 4 कह रहा 19वें पद में, और दूसरी बातों की लालसा। So it could be anything else और वो कुछ भी हो सकता है that keeps us from the word of God. और जो हमें परमेश्वर के वचन से दूर रखे। And nowadays, young people busy playing games on the phone, और देखिए, इन दिनों में जवान लोग फोन पर गेम खेलने में बड़े व्यस्त होते हैं, or something other things, so many other things. So many distractions are there. और देखिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान भटकाने की बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हमारा ध्यान भटकता रहता है। 1 hour, 2 hours, 5 hours goes. और 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटे यूं ही बीत जाते हैं। What if we had spent that time in the word of God? और सोच कर देखिए कि उतना समय अगर आपने परमेश्वर के वचन में बिताया तो कैसा होता। Desire for other things. और दूसरी चीजों की लालसा। Are you listening? आप सुन रहे हैं? So we have to protect that word. और हमें उस वचन को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, Otherwise, these thorns can come into our heart and choke the word. और अन्यथा ये झाड़ियां हमारे जीवन में आएंगी और परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में दबा डालेंगी, And that the seed of the word will not produce. और तब वो परमेश्वर के वचन का बीज जो है वो उत्पन्न नहीं कर पाएगा। We can pray, oh God, work in my life. और हम प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर आप मेरे जीवन में काम करिए,
God says, yeah, I've given you my word. और परमेश्वर कहेगा हाँ मैंने अपना वचन तो तुम्हें दिया है I work through my word. और मैं अपने वचन के माध्यम से कार्य करता हूँ My word is that seed. और मेरा वचन वो बीज है I put my life and power in that word. और मैंने अपने जीवन और सामर्थ्य उस बीज में डाल के दे दिया है But मगर those thorns are choking the words. और वो झाड़ियां उस वचन को दबा रही हैं It's not producing. और वो फल नहीं ला पा रहा है So the only answer is get rid of the thorns. और उत्तर ये है कि उस झाड़ियों से अपने आप को बचा ले And then you will see God work. और तब आप देखेंगे परमेश्वर काम कर रहा है The seed of his word will begin to produce. और परमेश्वर के वचन का बीज आपके अंदर में फल लेकर आने लग जाएगा Amen. आमीन So now let's go to the fourth one. और हो के हम चौथी भूमि पर चले The good ground. और भली भूमि अच्छी भूमि Good ground. और अच्छी भूमि So what I want you to do quickly, और मैं चाहता हूं कि आप एक बात को करें turn to Matthew 13, Mark 4, Luke 8. और देखिए मत्ती 13 मरकुस और लूका 4 अध्याय को खोल कर रखिए And look at the last verse और उसका अंतिम वचन आप देखिए where Jesus is explaining the parable. और जहां पर यीशु मसीह उस दृष्टांत का समझा रहा है So that means you look at Matthew chapter 13 and verse 23 और मत्ती 13 उसका 23 पद हम देखें and Mark chapter 4 मरकुस 4 अध्याय and verse 20 और उसका 20 वचन and also Luke chapter 8 और लूका 8 अध्याय and verse 15. और उसका 15 वचन So Matthew chapter 13 मत्ती 13 verse 23, और उसका 23 वचन Mark chapter 4 मरकुस 4 वचन verse 4 20, अध्याय verse 20 उसका 20 वचन and Luke chapter 8 और लूका 8 अध्याय verse 15. और उसका 15 वचन And tell me, what must we do to make sure the word of God produces in our life? What are all the things we see in these three verses? और आप मुझे देख कर बताइए उस तीनों वचनों के अंदर में हमें क्या मिलता है कि हम क्या करें ताकि हमारे हृदय में परमेश्वर के वचन का फल उत्पन्न हो What do we say? और हम क्या देख रहे हैं First one in Matthew 13, what do we see? और मत्ती 13 में हम क्या देखते हैं They hear the word and और वो सुनते हैं और समझते हैं they understand. और समझते हैं Next, Mark दूसरा, 4, मरकुस 4 में क्या लिखा है verse 20, what happens there? और 20 वचन में क्या कह रहा है They hear the word and accept, they receive. और वो वचन को सुनते हैं और प्राप्त करते हैं या ग्रहण करते हैं So they understand it, और वो उसे समझते हैं they receive it. और उसे ग्रहण करते हैं Luke 8, और लूका 8 what do we see there? और हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं They receive the word with a good and noble heart. That means the heart condition is good. और देखिए वो मन उत्तम मन से उसे स्वीकार करते इसका मतलब उनके हृदय की स्थिति जो है वो अच्छी है They keep it and bear fruit with patience. और वो धीरज से संभालते और फल लाते हैं So Matthew says, you understand it. और मत्ती कहता है कि आप उसे समझते हैं Mark says, you receive it. मरकुस कहते हैं कि आप उसे ग्रहण करते हैं And Luke says, you have to retain it. That means you have to hold on to it with patience. और लूका कह रहा है कि आपको धीरज के साथ उसे थामे रहना है उसे बसाए रखना है Understand it? आप समझ रहे हैं I'm just repeating the same thing. We have to understand it. और देखिए हमें समझने की आवश्यकता है We have to receive it. और हमें उसे ग्रहण करना है We have to retain it. और हमें उसे संभाले रहना है Amen? हमें Then we will bring forth fruit. और तब हम फल उत्पन्न करेंगे So let's do it again. We have to understand it. और फिर से करें हमें इसे समझने की आवश्यकता है We have to receive it. और हमें उसे ग्रहण करने की आवश्यकता है
and we have to retain it. और हमें उसे संभाले रहने की आवश्यकता है, Then we will bring forth. और तब हम फल उत्पन्न कर पाएंगे। So remember, there is nothing wrong with the word of God. और देखिए, याद रखिएगा, परमेश्वर के वचन के साथ में कोई त्रुटि नहीं है, It is full of power. और वो सामर्थ से परिपूर्ण है। And God has given us his promises because he wants his promises to be fulfilled in our और lives. परमेश्वर ने हमें अपने वायदों को दिया है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर में उसके वायदे पूरे हो जाएं। But मगर our heart must be good ground. और हमारा हृदय अच्छी भूमि होना चाहिए। Don't let stones come in. और आप पत्थरों को अंदर आने की अनुमति ना दें। You may face persecutions, you may face tribulations, but don't let it get into your heart. No, keep it out. और आप उपद्रव का सामना करेंगे, सताव का सामना करेंगे, लेकिन आप उसे अपने हृदय में अंदर आने का अनुमति ना दें, उन्हें दूर रखें। There may be the cares of this world, the deceitfulness of riches, desire for the, keep it out. Don't let it become thorns. और देखिए, संसार की चिंता, धन का धोखा, बाकी चीजों की लालसा आने का प्रयास करेंगे, उन्हें दूर रखिए, अंदर ना आने दें। Receive you understand the word, और आप परमेश्वर के वचन को समझें, receive it, और उसे ग्रहण करें, and you retain it और उसे संभाले रखें in your heart. अपने हृदय में। Then तब we will bring forth fruit. और हम फल उत्पन्न करेंगे, The word will produce in our lives. और वचन हमारे जीवन में फल उत्पन्न करेगा। We can enjoy the work of God, God working in us. और देखिए, हम आनंद उठाने पाएंगे परमेश्वर जो हमारे हृदय में जीवन में काम कर रहा है उसका। Amen. आमीन। Any questions till now और अभी तक कोई प्रश्न है? before we go forward? Any और questions? आगे जाने से पहले कोई प्रश्न? All right. Now, we're going to go one level deeper. और देखिए, अब हम एक स्तर और गहराई में उतरेंगे। How do we receive the word? और कैसे हम वचन को प्राप्त करते हैं, So that it can take root in our hearts and the roots can go deep and it can begin to produce. How do we receive the word? और कैसे हम परमेश्वर के वचन को प्राप्त करते हैं कि वो हमारे हृदय में उतरने पाए, हमारे हृदय के अंदर में गहराई में वो जड़ पकड़ सके। In the Bible, बाइबल में there is a very important word that is used in relationship to God's word. There's an important word that is used in relationship to the word of God. और देखिए, बाइबल के अंदर में एक बहुत विशेष वचन है जो कि परमेश्वर के वचन के साथ के रिश्ते के बारे में बात करता है। It is the word meditate. और वो कहलाता है मनन करना। We must meditate in the word of God. और हमें परमेश्वर के वचन में मनन करने की आवश्यकता है। And when we meditate in the word, और जब हम परमेश्वर के वचन में मनन करते हैं, we are taking the seed of the word of God और हम परमेश्वर के वचन के बीज को लेते हैं, and we are sowing it into our hearts. और उसको लेकर अपने हृदय की भूमि पर बोते हैं, And we are protecting the word and nurturing the word. और हम उस वचन को सुरक्षा प्रदान करते हैं और उसे पोषण देते हैं। So we're going to learn how to meditate in the word of God. और अभी हम इस बात को सीखेंगे कि किस प्रकार हम परमेश्वर के वचन में मनन कर सकते हैं। You ready? आप तैयार हैं? Yeah. So let's look at some, scriptures that tell us we must meditate in the word. और देखिए, हम कुछ वचनों को देखेंगे जो बाइबल में हमें इस बात के लिए बताते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन पे मनन करने की आवश्यकता है। Joshua chapter 1 यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय and verse 8. और उसका 8 वचन। This is a very well-known scripture. और देखिए, ये बड़ा प्रसिद्ध जाना पहचाना वचन है। Joshua 1 verse 8. We can read it in Hindi. और यहोशू 1 उसका 8, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए,
इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। Now just think about this. और इसके बारे में थोड़ा विचार करिए। Joshua has been given a big responsibility. और यहोशू को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, Moses has died. और मूसा की मृत्यु हो चुकी है। Now Joshua has to lead all these people into the promised land. और यहोशू को इन सारे लोगों को वायदे की भूमि में अगुवाई करना है। And so God is speaking to Joshua. और परमेश्वर यहोशू से बातें कर रहा He है। says, Joshua, I want you to be strong, be very courageous. और परमेश्वर कहता है, यहोशू मैं चाहता हूं कि तू हियाब बांध और दृढ़ हो जा। As I was with Moses, I will be with you. और जिस प्रकार मैं मूसा के साथ में था वैसा ही मैं तेरे संग रहूंगा। But then God tells Joshua, और लेकिन उसके बाद परमेश्वर यहोशू से कह रहा है, but I want you to do something. और लेकिन मैं चाहता हूं कि तू एक बात कर। In order to be successful, और यदि तुझे सफल होना है, in order for you to prosper in this assignment, और इस कार्य के अंदर में अगर तुझे सफल होना है, I want you to do something. और मैं चाहता हूं कि तू कुछ काम को कर, You must meditate और तुझे मनन करना है in my word. मेरे वचन पर। Don't let my word go away from your eyes. और तू अपनी आंखों से मेरे वचन को ओझल होने मत देना। Don't go from my word to the left or to the right. और मेरे वचन से तू ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, Stay with my word. और मेरे वचन से पे बना रहना। And the way you do it is by meditating in my word day and night. और कैसे तू करेगा इसको? मेरे वचन पर दिन रात मनन करते रहना। Meditate in my word. और मेरे वचन पे मनन कर। This is very important. और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। Joshua must have been wondering, okay, God, how do I fulfill this big responsibility? और हो सकता है कि यहोशू इस बात को सोच रहा होगा, परमेश्वर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे पूरी करूंगा? How can I make sure that I successfully take these people into the promised land? और किस प्रकार परमेश्वर में सफलतापूर्वक इन सारे लोगों को वायदे की भूमि के अंदर में अगुवाई करने पाऊंगा? And God is giving him one very important instruction. परमेश्वर उसे एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्देश दे रहा है। Meditate in my word और मेरे वचन पे मनन कर day and night. दिन और रात। Amen. आमीन। So think about it. और सोचिए इसके बारे में। Maybe, some of us, maybe when we maybe ready to start a ministry or do something big, and we're saying, God, what should I do to be successful? और देखिए हम में से बहुत सारे लोग शायद सेवकाई के लिए तैयार होंगे, कुछ बड़ा कार्य करने के लिए, और प्रार्थना कर रहे होंगे, परमेश्वर पे बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन कैसे करूं? I'm sure one of the things God will tell us. और मुझे इस बात का पक्का है कि परमेश्वर उन बातों में एक बात जरूर इस बात को कहेगा। He'll tell us what he told Joshua. और परमेश्वर हमसे वही कहेगा जो यहोशू से कहा है, Meditate in my word और मेरे वचन पर मनन कर, ध्यान लगा, day and night. और दिन और रात Meditate. और मनन कर। If you want to prosper, you want to be successful in whatever assignment you have. और जो कुछ कार्य अगर जो भी तेरे पास में, अगर तुझे उसमें संपन्न होना है, सफल होना है। Amen. आमीन। We'll just look at some more scriptures. If you go to Psalm 1, और आइए हम थोड़े और वचन देखें। भजन पहला भजन संहिता verses 1, 2, and 3. और उसका पहला, दूसरा, तीसरा। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पे रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। Now, what a beautiful picture of a very successful person. और देखिए कितनी सुंदर तस्वीर एक सफल व्यक्ति के बारे में है। No, it says verse 3,
और तीसरे वचन में लिखा है, he brings forth his fruit in its season. और वो अपनी ऋतु में फलता है His leaf never withers. और उसकी पत्तियां कभी मुरझाती नहीं है। That means he's always fruitful. और इसका मतलब है कि हर समय वो फलवंत है, Every season, और हर एक ऋतु के अंदर में, his leaf is green. और उसकी पत्तियां जो है वो हरी ही है। What's his secret? और उसका रहस्य क्या है? Verse 2. और दूसरा वचन में लिखा He है, meditates और वो ध्यान करता है, मनन करता है in God's word परमेश्वर के वचन में, day and night. दिन और रात, He meditates. और वो ध्यान करता है। So we must learn और हमें सीखने की जरूरत है how to meditate. और कैसे मनन करना है। Okay? ठीक है, Take a quick break. और जल्दी से ब्रेक में जाके आएंगे, We'll come back and we'll get into it further. और हम आएंगे वापस ब्रेक से, फिर आगे शिक्षा में बढ़ेंगे।